I'm Dr. Shipra Goel, Assistant Professor at Kanudia PG Mahila Mahavidyalaya. Let us continue the physiology of excretion. Have a look on 3D model of urinary system. Right kidney, left kidney, ureter, that is right ureter, passes from kidney to the urinary bladder, and then urinary bladder, it will go into the urethra. Just see the position of the urethra. This is a male urethra. Urinary bladder, and then urine passes through the urinary male urethra and then through the penis. Just see the position. Right urethra, left urethra, they both opens in the urinary bladder, and see the position of these ureter. Both the kidneys, right kidney, left kidney, in between the second lumbar vertebra. So let us continue. Urethra. Urethra, it is a membranous tube with a mucus lining that carries urine from bladder to the outside of the body, that we call it as a micturition. It originates from the neck part of the urinary bladder. It is different in females and in males. In females, the urethra, it opens separately at the urinary aperture that is located above the vagina. In males, the urethra opens at the genital aperture, and we collectively call it as a urinogenital aperture. In female, it is only 1.5 inches long, and in males, it is approximately 8 inches long, and it has three different regions: prostatic urethra, membranous portion, and then the external urethral orifice. Kidneys has rich blood supply. It receives blood from aorta to the renal artery and send back the blood in through the renal vein, that is through the inferior vena cava. Let us have a look. Blood supply starts with the renal artery, then it will divide it into 4 to 5 segments that we call as segmental artery. Then it will go into the lobar artery, then interlobar artery, then arcuate artery, then it will go into the interlobular artery. Then this interlobular artery will the blood, it will go into arcuate artery. From arcuate artery, it will go into the afferent arteriole. From arcuate artery, it will go into afferent arteriole. From afferent, it will go to the glomerulus. From glomerulus, it will go out to the efferent arteriole. And then from efferent arteriole, it will form the peritubular capillaries. Then peritubular capillaries and vasa recta. And then it will go into the interlobular vein. From interlobular vein, it will go into arcuate vein. Arcuate vein, then interlobular vein. This is interlobular vein, and then from this it will go into arcuate vein. Arcuate vein, then interlobular vein. जैसा कि हमने बताया, अगेन आर्क्यूएट वेन से अगेन कहाँ जा रही है? इंटरलोबुलर वेन, और इंटरलोबुलर वेन से फाइनली जाएगी आपके रीनल वेन के अंदर, राइट? तो ये जो रेड से आपको नजर आ रहा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि एंटर कर रहा है थ्रू द आर्टरी, और ब्लू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा है थ्रू द रीनल वेन. So this is
This is a pathway of the blood supply in the kidneys. So we can say that blood, it is flowing through the kidneys, that is entering through the renal artery, that is arteriole, and then it will go into the nephron, that is a renal corpuscle. Renal corpuscle means glomerulus, that will filter the fluid from the blood, and then it is this glomerulus is the first place where the urine is formed in the kidneys. Then this blood, it will flow through the glomerulus at a constant rate. This is very much important line that is to be remembered, that blood flows through the glomerulus at a constant rate. Then from the glomerulus it will go into the Bowman's capsule, then it passes into renal tubules where some substances they are reabsorbed and the remaining they becomes urine. So the main function of the kidney, or you can say the functional unit of nephron, is the formation of urine. Its collecting duct formation is to control the composition of body fluid so that only the waste material from the blood can be excrete out in the form of urine. तो हम क्या कहेंगे कि यूरिन जो है उसके अंदर वेस्ट, एक्सेस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है. यूरिन जो फॉर्म होता है वो 3 प्रोसेसेस से फॉर्म होता है. एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दैट इज ग्लोमेरुलस के अंदर हो गया, देन दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ट्यूब्यूल इसे रीअब्जॉर्ब कर रही है एंड देन ट्यूब्यूल इसे सिक्रीट कर रही है, राइट. तो दिस इज द 3 processes by which 3 renal processes by which the urine is formed. This is a uncoiled nephron which is showing 3 major renal processes that will adjust the plasma composition. So in the systemic capillaries filtration कहाँ predominate हो रहा है? Anterior end पर, और osmotic reabsorption predominate होता है at the venular end. तो हम कह रहे हैं kidneys के अंदर जो glomerular capillaries है, they are the specialized organ for the filtration. Renal tubule वो specialized है, क्या कर रही है? Control कर रही है substances का back into the blood. यहाँ से दोबारा blood के अंदर जा रहा है, that is tubular reabsorption, और ब्लड से फिर दोबारा रीनल ट्यूब्यूल में जा रहा है, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिससे यूरिन फॉर्म होता है. तो हम पहला लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो पहले मूव कर रहे हैं ब्लड से. ये जो ब्लड है कैपिलरीज है उससे ब्लड कहाँ जा रहा है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर जा रहा है. तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ये सराउंडेड होती हैं बाय एंडोथीलियम, और ये जो कैप्सूल है दैट इज सराउंडेड बाय द एपिथीलियम. एंडोथीलियम के अंदर फिल्टरिंग पोर्स होते हैं जो कि 75 mm डायमीटर के होते हैं, और एपिथीलियम के अंदर जो होते हैं वो 25 mm के फिल्टरिंग पोर्स होते हैं. ये जो पोर्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फिल्ट्रेशन स्लिट्स. ये देख रहे हैं आप लोग, दीज आर द filtration slits by the presence of podocytes. ये जो filtration slits होती हैं ये permeable होती हैं to water, salt, urea, glucose, uric acid and other low molecular weight substances. ये substances फिर reach करते हैं into the lumen of the Bowman capsule from the blood, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? This is a glomerular filtrate. फिल्ट्रेट आइडेंटिकल होता है ब्लड प्लाज्मा से, लेकिन इसके अंदर सेल्स और प्रोटीन्स नहीं होते हैं. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फिल्ट्रेट एंड द ब्लड प्लाज्मा. तो हम क्या कहेंगे कि 3 पार्ट होते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के. एक तो कैपिलरी एंडोथीलियम होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और फुट प्रोसेसेस होते हैं पोडोसाइट्स के, राइट, ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स. ये जो तो अब ये सब्सटेंसेस जो है हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस से या कैपिलरी से कैप्सूल में आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स है जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस है वो कैपिलरी से कैप्सूल के अंदर आ रहा है. तो नेट जो हमारा आउटवर्ड प्रेशर है जिसकी वजह से ये आ रहा है वो कितना है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10. कैसे निकाला?
हम देखते हैं कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो क्या है, एक तो फोर्स दैट इज फेवरिंग द फिल्ट्रेशन माइनस द फोर्स विच इज अपोजिंग द फिल्ट्रेशन। तो जो फोर्स फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन वो कौन सा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो अपोज कर रहा है दैट इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम फेवरिंग में से अपोजिंग वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो हम जो बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के। मतलब ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलर के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है, तो ये जो फिल्ट्रेशन रेट है वो प्रोपोर्शनल है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के। तो जिस समय ये जो ग्लोमेरुलर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव होगा दैट मीन्स फिल्ट्रेशन होगा, नॉर्मल फिल्ट्रेशन अकर होगा। तो जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए नेट फिल्ट्रेशन के लिए वो कौन कौन से हो गए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू अ प्रोसेस जिसे कि हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। मतलब इसको प्रोसेस को कांस्टेंट रहना जरूरी है ना, लेकिन और वो कांस्टेंट रहती है बाय द प्रोसेस जिसे कि हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। लेकिन कई बार जीएफआर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस दैट विल ओवरराइड द ऑटो रेगुलेशन। तो प्राइमरली 3 मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीएफआर को कांस्टेंट रखने के लिए। पहला है ऑटो रेगुलेशन, दूसरा है इंक्रीज सिंपैथेटिक इंपल्सेस जो कि जीएफआर को डिक्रीज करेगा बाय कॉजिंग एफरेंट आर्टरियोल्स टू कंस्ट्रिक्ट, तीसरा है जो ये हार्मोन लाइक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है। उसके अलावा एक हार्मोन और है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो कि अफेक्ट कर रहा है सोडियम कॉजिंग इंक्रीज इन जीएफआर। तो देखिए क्या है, जब ब्लड प्रेशर, और ये जीएफआर जिसको कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। तो जब जीएफआर कम हो जाता है उस समय एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो क्या होता है, जो एफरेंट आर्टरियोल्स की जो वॉल है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्ट्रेच करेंगी, उससे एफरेंट आर्टरियोल्स का वैसोडाइलेशन हो जाएगा, और वैसोडाइलेशन होने से जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मायोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ ऑटो रेगुलेशन। दूसरा मैकेनिज्म है ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। वो क्या है कि जब जीएफआर डिक्रीज होता है उस समय फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, फिल्ट्रेट फ्लो कम हो रहा है, उस समय NaCl जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में वो भी कम आ रहा है। उससे जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ किडनी के, वो क्या करेंगे, वेसोडाइलेट करेंगे एफरेंट आर्टरियोल को, उससे क्या होगा, जीएफआर फिर अगेन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों जो प्रोसेस है मायोजेनिक मैकेनिज्म और ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म, ये दोनों इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है जो कि डायरेक्टली रेगुलेट कर लेते हैं जीएफआर को डिस्पाइट द मॉडरेट चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर दैट इज बिटवीन 80 एंड 180 mmHg, दैट इज मीन आर्टरियल प्रेशर। दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म मतलब इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहे हैं जीएफआर को, वो हम रेगुलेट कर रहे हैं जीएफआर को बाय मेंटेनिंग सिस्टमिक ब्लड प्रेशर दैट डिराइव्स फिल्ट्रेशन इन द किडनीज दैट इज विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है, यानी कि हार्मोनल मैकेनिज्म अब हम ले रहे हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म में क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, दिस इज द हार्मोनल सिस्टम दैट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड द प्रेशर। अभी इसमें क्या होता है, जो किडनीज है वो उसका रोल देख रहे हैं हम। किडनीज जो है वो क्या कर रही है, रेनिन सिक्रीट कर रही है। रेनिन सिक्रीट करने से क्या होता है, एंजियोटेंसिन जो कि लिवर से सिक्रीट होकर आ रहा है उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देती है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो फिर क्या करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द लंग कैपिलरीज एंड दैट विल कन्वर्ट दिस एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जब बन गया तो ये क्या डायरेक्ट इफेक्ट शो करता है कि जो आर्टरीज होती है उसको तो कंस्ट्रिक्ट करवा देता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है जिससे कि ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है जिससे वाटर रिटेंशन हो जाता है और जिससे हमें प्यास लगने लग जाती है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन का ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरॉन जो कि लिवर से सिक्रीट हो रहा है, सॉरी एल्डोस्टेरॉन जो कि
एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है जो कि किडनीज के ऊपर है। तो ये एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा, दे विल कॉज द नेफ्रॉन डिस्टल ट्यूब्यूल्स टू रीअब्सॉर्ब मोर सोडियम एंड वाटर, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एडीएच जो कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, हाइपोथैलेमस में बन रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है, दैट विल मीडिएट द इंसर्शन ऑफ एक्यूपोरिन्स इनटू नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट सेल्स, जिससे क्या होगा, मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड एंड दैट विल इंक्रीज द सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन द मेडुला ऑफ द किडनी, राइट। अब दूसरा हार्मोन हमने क्या कहा, एएनपी, जो क्या है, एंटागोनिस्टिक है एंजियोटेंसिन पाथवे के। दैट मीन्स ये जो एएनपी है वो क्या कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को डिक्रीज करेगा। तो क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा कैसे, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, उससे क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीजिंग ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस बाय द नेफ्रॉन्स, और जिससे क्या होगा कि रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एडीएच इनका रिलीज इनहिबिट हो जाएगा, राइट। तो जो एएनपी हार्मोन है वो क्या कर रहा है, एंटागोनिस्टिक रोल प्ले कर रहा है। तो ये आपका हुआ हार्मोनल मैकेनिज्म। दूसरा है न्यूरल कंट्रोल, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स, इट स्टिमुलेट्स और इनहिबिट्स इंक्रीज और डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो मतलब ये हो गया न्यूरल कंट्रोल। तो ये दोनों हार्मोन और न्यूरल कंट्रोल्स क्या है, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है जो कि इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहे हैं जीएफआर को by maintaining systemic blood pressure, जो कि ड्राइव करता है filtration in the kidneys. These are the references. Thank you.